Welcome once again for 10 minutes extraordinary practice. Today I will be asking you sentences based on degree, causative verb and relative pronoun. We'll be asking you something which you have never heard before. You guys have to listen it very carefully and try to translate each and every sentence carefully that I'm asking you. So let's start to practice the three most important topic in English language. Number one is causative verbs. The second one that we have is degree, and the third one that we have is passive voice and some special structures, so these three things we are going to practice today, and we'll see how you guys are going to speak them. So the first sentence that I would like to ask is, मैंने उतना ही बोला जितना आपने सुना, लेकिन आपको लगता है कि मैंने आपसे ज्यादा बोला. Come on, in English. मैंने उतना ही बोला जितना आपने सुना. I spoke as much as you heard. But आपको लगता है, but you think. Come on. But you think मैंने आपसे ज्यादा बोला. I spoke more than you did. आपको नहीं लगता आप लेट हो रहे हो? Don't you think you are getting late? Don't you think आप लेट हो रहे हो? You are getting late. मुझे लगता है आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है. I think you should not go there because there is no advantage to go there. It's no use to go there. It's no use to go there. इस काम को 2 दिन में anyhow किया जाना चाहिए. Come on everybody, इस काम को 2 दिन में anyhow किया जाना चाहिए. This work should be done in 2 days anyhow. इस काम को 2 दिन में किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता. This work can never be done at any cost within 2 days. This work can never be done. कभी नहीं किया जा सकता. This work can never be done within 2 days at any cost. आपको क्या लगता है कॉम्प्लिकेटिव है? What do you think? It's complicative. ये उतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है जितना आप समझते हो. This is not so complicative as you think. इंग्लिश उतनी भी कठिन नहीं है जितनी आप सोचते हो. क्या कहेंगे? English is not so complicated. English is not so difficult. So complicated, so hard, so problematic, जो भी आप लिखना चाहें. English is not so difficult जितना आप सोचते हो. As you think. मुझे लगता है इंग्लिश ज़्यादा कठिन है हिंदी से. I think English is more difficult than हिंदी. आपको ऐसा क्यों लगता है? Why do you think so? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है. जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं ना, तो हम अटक जाते हैं, जबकि हम हिंदी में नहीं अटकते. मतलब हिंदी ज़्यादा ईजी है. I have noticed this thing practically because when we talk in Hindi, when we talk in English, we get stuck, but in Hindi we don't get stuck. आपको पता है आप अपनी हिंदी भाषा में क्यों नहीं अटकते हो? क्योंकि आपकी मातृभाषा है मेरे भाई. और इंग्लिश में आप अटक जाते हो क्योंकि आप इसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप हैबिचुअल नहीं है, आदी नहीं है आप. ठीक है, ये रीज़न है एक्चुअल में. अंग्रेजी भाषा बहुत सरल है. See, why do you get stuck in English language? Because it is not your language, and in Hindi you are very good. You don't get stuck. You are habitual to speak Hindi. That's why you don't get stuck, and that is the reason that you are able to speak Hindi properly. And you face problem in English because you don't practice English. You don't speak at your home. You are not habitual to speak English, and that is why you get stuck. Simple सा गणित है. चलो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. I am practicing. मैं बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. I am practicing to speak. I am practicing to speak. जरा बोलो तो फटाफट फास्ट. मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूं. क्या कहोगे इंग्लिश में? I am practicing to write. मैं वहां जाया करता था. I used to go there. मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था. I used to teach English. मेरे पास समय था वहां जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाया. I had time to go there. लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया. But I couldn't go there. वहां जाना शुरू करो. Start going there. वहां जाना बंद करो. Stop going there. लिखना बंद करो. Stop writing. लिखना शुरू करो. Start writing. लिखने की कोशिश करो. Try to write.
पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच, ट्राई टू टीच। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। क्या आपको लगता है ये बोलना आसान है? डू यू थिंक इट्स ईजी टू स्पीक? डू यू थिंक इट्स ईजी टू स्पीक? मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आई कांट गो देयर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। बोलो, आई कांट गो देयर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं और वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम बट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी। ठीक है, क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या पढ़ाने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टीच? मैंने उसे बोलने नहीं दिया, आई डिडंट लेट हिम स्पीक। मैंने उसे वहां नहीं जाने दिया क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली थी। आई डिडंट लेट हिम गो देयर, आई डिडंट लेट हिम गो देयर बिकॉज उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली थी। ही डिडंट टेक परमिशन टू हिज पेरेंट्स। जब तक आप अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं लोगे, मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगा। Until and unless you take permission from your parents, I will not let you go there. दूसरों के बारे में सोचो, think about others. क्या कहेंगे? Think about others. अपने करियर के बारे में सोचो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? Think about your career. इंग्लिश पढ़ाओ, teach English. Teach इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो, क्या कहेंगे? बोलो, स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। आई नो वॉट ही इज डूइंग एंड वेयर ही इज गोइंग। उसे जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। रोको उसे, स्टॉप हिम। मैं उसे नहीं रोक सकता, आई कांट स्टॉप हिम। मैं अकेले उसे नहीं रोक सकता, मुझे 2 लोग और चाहिए। आई अलोन कांट स्टॉप हिम, आई कांट स्टॉप हिम अलोन। आई नीड 2 more people टू स्टॉप हिम, आई नीड 2 more people टू स्टॉप हिम। मुझे 2 लोग और चाहिए उसको रोकने के लिए। आपको वहां नहीं जाना चाहिए यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। यू शुड नॉट गो देयर इफ यू डोंट हैव टाइम। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। कम ऑन, यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, आई वॉज प्रैक्टिसिंग। मैं बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था, आई वॉज प्रैक्टिसिंग टू स्पीक। मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था, आई वॉज प्रैक्टिसिंग टू राइट। मुझे लगता है आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। आई थिंक यू मस्ट गो देयर, आई थिंक यू मस्ट गो देयर। जाओ यदि आप वहां जा सकते हो तो। गो इफ यू कैन गो देयर। पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो तो। टीच इफ यू कैन टीच। मैं सुनता हूं, आई लिसन। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं समझा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन। मैं समझा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन। मैं समझता हूं, अंडरस्टैंड। मैं समझा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन। समझाने की कोशिश करो, ट्राई टू एक्सप्लेन। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच। पढ़ाना आसान है, इट्स ईजी टू टीच। बोलना आसान है, इट्स ईजी टू स्पीक। मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, आई नो वॉट यू आर स्पीकिंग। मुझे पता है आप क्या पढ़ा रहे हो, आई नो वॉट यू आर टीचिंग, आई नो वॉट यू आर टीचिंग। So that is the practice for 5 to I think for 10 minutes we did.